Okay, dear friends, good evening. Glad to see you all at our today's meeting. It is the 11th of July, 2024, 1800 hours, 18:10 hours Kiev time. And now we are starting our live broadcast where we're going to look into several important aspects or points that relate to all of us, to more so to some of us, but anyways, it does affect everyone present at this conference today. Before we start the discussion of the topics that I'm going to tell you about, let's check again the technical side of it. Can you see me? Can you hear me? If everything is fine, give me a 10. If there are some issues, give me a score from 1 to 10 on how well everything is heard or visible. I see mostly tens, so my logical conclusion here is that you can see me loud and hear me loud and clear, and the connection is fine. Those partners who are present here today and are experiencing connectivity issues or sound issues, so most probably the problem is at your side. So if right now you are still experiencing some difficulties, then you will be able to watch our recording that will be published the next day after our conference or 2 days later on Saturday. And I would like to see the geography of our participants. We have 90 people in the Russian-speaking room. Unfortunately, I cannot see other rooms. So let's make like a geographical roll call. So what city and country you are from? Someone says Baku, Azerbaijan. Great. Almaty, Kazakhstan. Kyrgyzstan. Moscow, France. Almaty, Kazakhstan. Astana, Kazakhstan. Well, I see lots of partners from Kazakhstan, from Far East. Kashkitau, Israel. Great. We have people from the Black Sea. Well, that's where I live, by the Black Sea side. It's quite a huge sea. I see the Czech Republic, Czechia. Well, great friends. I'm glad that we have a quite vast geography that is growing every conference, and we have different regions, different countries joining our broadcast, joining our meeting. Well, Canada, I see Andre Gauthier. Welcome. By the way, Andre, I wanted to ask you one thing. You wrote to me directly. You asked me some work-related questions. So if you can, please write to me those questions again, because last time I asked you if you already had written to me in the past. Please do it again, because there are some things that I would gladly discuss with people from RSW systems that show more initiative. So we have things to talk about. So dear friends, if you have questions, proposals, initiatives, they are always welcome. And I'm ready to go back to our dialogue. Suraj, I would very much ask you to repeat your message, because I cannot see your message in Telegram. Cannot find your message in Telegram. Victor, I will answer your questions tonight. There will be separate time allocated, because did not quite understand your question right now, so I'm gonna put it down. Just give me a second. Dear friends, please note Victor's question. He asked why everything that has been bought using the investors' money and has not been yet allocated and turned into shares. A very good question, and I have an answer to that question. And I will gladly answer that question today.
If I skip it, just remind me in the chat. There will be a separate time slot allocated to the Q&A session and this question in particular. Today we're going to split our meeting into 3 different stages, topics, categories, dear friends. At first, we're going to talk about the latest achievements and results of the engineering technology, which is the string technology and the string technology development in the transportation market, which shows quite a lot of positive dynamics and gives us optimism. And it deserves special attention from our side. We're going to look into it. Next, we're going to look into additional questions and complaints that I read about and the comments that I read about under the video. The recording of our meeting is published. So you must have noticed that we do not delete any kind of comments, no matter what people write about, with an exception when people start getting personal, when they cross certain lines. And of course, in this case, we delete such comments and ban such people. But usually those people are dedicated haters and they have an intention to ruin the reputation of the string technology and the development of crowdfunding in general and our platform in particular. So the comments of such users are deleted, and such users will not be able to leave their comments anywhere else under our videos. But you must have noticed that no matter what kind of comment it is, as long as it is objective, will not and is not deleted. I'm sorry for diverting, because my assistant is writing to me that Hindi's translator has some bad audio. So our dear Hindi translator, could you please check your sound again? And dear partners from India, what about the rest of you? Is the sound good? And Ruslan, just please check whether the feedback is good, because it is very important for everyone to be in the same informational boat. So those partners who are listening to me in Hindi, could you please give me some feedback, give me a score on how well you can hear the Hindi translator. So in English, Andre says that it's 10 out of 10. Good. So, dear Indian partners, please give me your feedback. Someone says the sound is bad, worst. So I guess this is a problem. So while we are trying to set up the Hindi translation, I can continue what I was saying before. We appreciate the opinion of every partner, of every colleague of our platform. And my opinion is that everyone has the right to have an opinion. And the fact that we're not deleting any comments, we are giving the floor to everyone willing to provide their feedback under our YouTube videos, in Telegram. And we are as lenient as possible to every comment. Well, of course, sometimes in Telegram, people start crossing the so-called red lines. And then in this case, dear friends, please do not get offended if we ban
such partners from our channel and prohibit them from writing anything. So, in your opinion, this kind of attitude from our side is adequate? So we have both English and Russian speaking partners here who can hear me well enough. So please tell me whether such attitude to our users' feedback is adequate in your opinion. And while our colleagues are writing their answers, tell me what's the feedback in the Hindi room. So Ruslan is asking, what about the dividends? What about the contracts? Well, this is the question that everyone asks during every single meeting, and every time I answer, people are starting saying that Maxim is just talking nonsense, same old, same old. But we're going to be as objective today as possible on this particular topic. And after we discuss this particular issue in depth, you will have a very good understanding when it's going to happen, the dividends, etc., and what you can do with this information personally. Yelena, I will answer you in person as well. So let's not start the Q&A session right now, because by doing it, we're skipping our stage one, the first category of our today's meeting, and then we will move on to the Q&A, criticism, complaints, and then I'm gonna have a very good piece of news for you at the end of the meeting, so please stick to the end. Of course, it's going to relate most to our active partners, but even passive partners will find this piece of information interesting. So right now, please do not ask your questions. I have 8 bullet points that our clients are interested in, and every single bullet point will be discussed. And by bullet points, I mean questions. So Ruslan, what do we have? What is the situation with our Hindi room? And if everything is fine, I'm ready to continue with our today's agenda. Ruslan, give me some feedback in Telegram, and if everything is okay, I will turn my Telegram off in order not to be distracted by the Telegram messages. So dear Hindi translator, I have a big request to you. Could you please leave the room and then re-enter, rejoin the room, the Zoom room? And then, or probably switch to a different internet provider, to a different Wi-Fi network, because we have some connectivity issues. So I don't want to get into a situation where partners that joined our meeting from India would not be able to listen to me. Of course, we will translate it into Hindi, but it would be very good to have live broadcast in Hindi. Alex is saying, when are you going to organize a meeting with Unitsky? Unitsky organizes a meeting with investors every 6 months. Not so long ago, Unitsky, together with the CEO of a String Technologies company, issued a report on the activities of the company, and that's where they showed and told the participants, the attendees, about the results and achievements of the company. As for his meetings with him, तो हम लोग जो ये मिशन है जो अंतौली के जो मिशन है तो वो हम लोग ये चाहते हैं कि वो अपने 100% समय हमें दे रहे हैं और वो छुट्टियां भी नहीं ले रहे हैं और वो 24
घंटे काम कर रहे हैं। और पर भी फिर भी उस सभी के बावजूद भी 3 वीडियो जो है वो उनके उनके व्यक्तिगत चैनल के ऊपर जो है, और जहां पर जो जो वहां पर जो प्रश्न पूछ रहे हैं लोग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो आप एनाटोली के एनाटोली यूनिवर्सिटी के चैनल के ऊपर जाएं और उसको आप वहां पर देखें। और अगर आप वहां पर देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो तो वो ठीक नहीं है। तो आपको वाकई इसके बारे में एलेक्स अभी पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आवाज थोड़ी सी बेहतर हुई होगी। तो दोस्तों, तो और यहाँ पर मैं इस समय जो है बात कर रहा हूँ सीधे प्रसारण पर, मैं कोई वीडियो वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे साथ लोग जो हैं वो बात करेंगे कि किस प्रकार से आप चीजों को देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछे वाले जाने वाले जो प्रश्न हैं वो मेरे पास हैं, और डॉक्टर मिस्र जो है वो उन प्रश्नों को जवाब दे। परंतु ये विचार जो है, इस चीज को किया जा सकता है कि नहीं, ये एक अलग ही मुद्दा है। और यहाँ पर परंतु ये पर्याप्त है जो प्रारूप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सारी चीजें, लग रहा है कि अब हिंदी जो अनुवाद है वो भी ठीक हो चुका है। तो चलिए हम लोग अब बैठक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से जो संक्षेप में बात करते हैं कि किस प्रकार से जो जो और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलेंगे जो कि पूछे गए थे। और जो पिछली जो सत्र में लोगों ने जो पूछा था, और कुछ लोग जो थे उन्होंने उसका अनुवाद अलग अलग तरीके से उसको किया, और धन्यवाद है आपका। और वो कह रहे हैं कि हिंदी प्रतिभागी कह रहे हैं कि हिंदी की जो आवाज अब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हम लोग हैं वो केवल और केवल जो है खाली बातें कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि आप जो बोलते हैं वो केवल वो कहते हैं ना कि धोता चना बाजे घना है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है। और एक जो खबर जो मैं आपको देना चाहता हूँ कंपनी की तरफ से, और अभी हम लोग जो है कि पिछले महीने क्या हुआ, तो हमारे पिछले महीने जो था जो एक बैठक थी 20 जून को जो हुई। और यदि आप मेरी स्क्रीन को अगर आप देख पा रहे हैं, तो क्योंकि मैं स्क्रीन को साझा कर रहा हूँ, और तो सब चीजें ठीक हैं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली खबर जो है वो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बहुत ही हाल ही की जो खबर जो जो प्रकाशित हुई है, यूएसटी इंक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस जो है वो बना रहे हैं एक दक्षिण एशियाई अ, एशियाई देश के अंदर। और वो किस देश में है ये अभी तक इसलिए नहीं हो पाना क्योंकि वो अभी गैर प्रकटीकरण समझौते हैं। और जब गोपनीयता का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब हस्ताक्षरित होते हैं, तो इस वजह से जब समय आएगा तभी हम लोगों को पता चलेगा, उससे पहले हम लोगों को नहीं पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी खबर है। और जो निवेश करते हैं वो सभी चीजों का ध्यान देते हैं, जैसे कि भूगोल का। तो कुछ देश जो हैं उनकी इच्छा है और वो पहल करना चाहते हैं कि
वो इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करे, लेकिन वो फिर भी जो है वो इसके बारे में कौन से देश में ये हो रहा है, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होगी वो किस देश में हो, वो अभी उसको उसका खुलासा नहीं करना चाहेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं जो लोग, तो अभी जो है इसकी पूरी की पूरी जो एक छवि है उसको बनाया जा रहा है। और यहाँ पर एक भौगोलिक अनुसंधान शोध जो है वो किया जा चुका है इस चीज को समझने के लिए कि किस प्रकार से इस परियोजना की नींव रखी जाए। ये बहुत जरूरी है कि इस परियोजना की लागत कितनी होगी, ये बहुत जरूरी है, तो कि आप जो है एक दक्ष जो लागत है उसको उसको प्राप्त कर सके। और यहाँ पर केवल और केवल जो है, और ये खबर मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, तो जो कंपनी जो है वो, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये फिजिबिलिटी स्टडी की बात शायद नहीं हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से डिजाइनिंग होती है, तो यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि वाकई में ये जो परियोजना है वो कितनी बड़ी होगी। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि तो ये जो हाल ही के ऊपर जो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित जो ये खबर है, ये बताता है कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, और हम लोग यहाँ पे शहरी परिवहन की बात कर रहे हैं, और इसका खुलासा किया गया है और इसकी मांग भी है, और इसका इसका जो है, क्योंकि क्योंकि जो यहाँ पर जो लोग हैं, और ये जो प्रौद्योगिकी है ये अभी तक पूरे तरीके से जो है यहाँ पर जो है उसको उसको अभी अमल नहीं किया गया है, तो ये उत्पाद जो है ये मांग में है। और और ये जो कमर्शियल परियोजना है और ये आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम दिसंबर 2023 की बात करते हैं, तो हम लोगों को ये मालूम है कि कंपनी के पास बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं। और मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि, और वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत वफादारी, और ये जो जो मील पत्थर जो प्राप्त हो रहे हैं स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि ये जो प्रौद्योगिकी जो है ये अब बाजार की तरफ जा रही है, और वाकई में ऐसे ठोस कदम रख रही है बाजार के लिए। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता हूँ अ, कि बहुत आगे तक चले गए हैं, लेकिन जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे कदम इस टेक्नोलॉजी के लिए उठाए जा रहे हैं, वो काफी ठोस हैं। और ये अलग अलग बाजार हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी खबर भी है, क्योंकि एक बार फिर ये इस चीज को बताती है कि जो भी मैंने कहा है, जो हमने पिछली बैठकों में जो बात की है, कि कंपनी के पास एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके ऊपर वो अमल कर सकती है, कार्यान्वित कर सकती है, और ये जो खबर है उसी चीज की पुष्टि भी करती है। विक्टर ने यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि इस समय हम लोग जो है एक ऑडिट या लेखापाल की एक चरण में है। तो अगर आप जो गतिविधियां कंपनी की गतिविधियों का अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं पिछले सालों से, तो जब आप निवेशक हैं तो आपको ये मालूम है कि हर 6 महीने में एक फाइनेंशियल ऑडिट होती है। और मैं माफी चाहूंगा कि 6 महीने के अंदर जो जो तो हर 6 महीने के बाद एक ऑडिट होती है, और साल के अंत में एक वित्तीय ऑडिट भी बैठती है। तो इसीलिए जो ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो एक बहुत ही बड़ा एक दस्तावेज होता है, जो कि बहुत ही विशेषज्ञों द्वारा विशेषज्ञों द्वारा जो है वो प्रकाशित किया जाता है, जारी किया जाता है। ये कोई भी जारी नहीं कर सकता, जैसे कि कोई भी नोटरी पब्लिक पब्लिक जो है वो नोटरी नहीं कर सकता, लेकिन ये इसका इसका एक बहुत तरीके से जो है ढंग से
जो है इसका वित्तीय ऑडिट वो होता है। ये इसको करने के लिए जो है बहुत ही विशेषज्ञ लाइसेंस प्राप्त कंपनीज होती हैं। तो इसी जितना ज्यादा जो जो ऑडिटर जो है ऑडिटर की जो कंपनियां हैं जितनी ज्यादा दिग्गज होती हैं उतनी ज्यादा जो रिपोर्ट है वो विश्वसनीय होती है। और यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया की सबसे एक अग्रणी कंपनी है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी जो है इतने सालों में जो कार्य कर रही है, जो बेलारूस में कार्य कर रही है, ईस्ट यूरोप में काम कर रही है, जो ये सारी की सारी गतिविधियां वफादारी से, पारदर्शिता से और वित्तीय जो जो वित्तीय रूप से पारदर्शी हैं, जो कि ऑडिटर्स जो है इस चीज को मानते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ऑडिटर्स होते हैं। और और इसका मतलब ये है कि जो भी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर जो भी कार्यान्वयन हो रहा है उसके अंदर सभी सिद्धांतों का अनुसरण किया जा रहा है, पारदर्शिता का भी अनुसरण किया जा रहा है। और यदि कंपनी जो है अगर सतत रूप से नहीं चल सकती है तो अगर ये सतत रूप से यानी कि सेल्फ सस्टेनेबल अगर नहीं है तो ये अभी तक जो है वो किस प्रकार से नए निवेशकों को अपनी तरफ जोड़ रही है। तो चलिए इसको थोड़ा तर्क से देखते हैं, कुछ तथ्य देखते हैं। देखिए, जो सस्टेनेबिलिटी होती है, जो सततता होती है, जो निरंतर चलने की जो कला होती है, तो उसके लिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे जैसे कि सॉफ्टवेयर हुआ या जो दूसरी लागत वाली जो चीजें होती हैं, और अगर कंपनी उन सभी लागतों को पूरा कर लेती है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने खर्चे पूरे कर रही है और किसी बाहरी मदद से के बिना जो है वो आगे बढ़ रही है। और कई बार दूसरी चीजें होती हैं, जैसे कि आप अपनी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का अपग्रेड करते हैं, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर कोई दिक्कत है उसकी ट्रबल शूट करते हैं। तो यहाँ पर जो जैसे कि पहला मॉडल बना था यूनिबस का या यूनिलाइट का, तो हर समय जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं और जो मौजूदा प्रौद्योगिकियां हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो कार्य है, जो हम लोग उन कार्यों को जो है अभी नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कि हम अभी देख नहीं पा रहे हैं कि हाई स्पीड जो परिवहन है, हाई स्पीड वो अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो ये देख पा रहे हैं कि जो रोलिंग स्टॉक है वो प्रशिक्षण उसका हो चुका है और वो चल रहा है। और इसका प्रस्तुतिकरण जो है एक्सपो 2018 में किया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2018। और हम लोग पर अभी तक 500 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से नहीं पहुंचे हैं, परंतु इस प्रकार की प्रौद्योगिकियां जो है वो विकसित होने के लिए आपको अतिरिक्त फंडिंग की, वित्त पोषण की आवश्यकता होती है। तो जब आप लागत का प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, जब आप सततता की बात करते हैं, तो ये एक अलग बात है। अभी बात करेंगे बैठक के अंदर, लेकिन अभी नहीं। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्षण दीजिए मुझे। 4 जुलाई, जो कि एक हफ्ता पहले की जो बात है, यहाँ पर अभी प्रकाशित हुआ था। और सभी आप में से काफी लोगों को पता होगा कि यूएसटी कंपनी साइंटिफिक काउंसिल जो है, जो कि डॉक्टर यूनिस्की को उन्होंने प्रस्तुत किया। और इस इवेंट के अंदर, ये जो इवेंट है लगातार तरीके से होता रहता है। इसको दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि जो ये प्रौद्योगिकी है, तो आप इस प्रौद्योगिकी को एक नए स्तर पर लेकर जा रहे हैं जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रौद्योगिकी का प्रचार करते हैं, जब आप नवोन्मेष की बात करते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्या है वो ये कि जो जो कंपनियां हैं वो ये कहती हैं कि
कि 2024 में ये दूसरा काउंसिल जो था वो हुआ था, और ये तकनीकी काउंसिल था, प्रौद्योगिकी काउंसिल था। और उन्होंने यूनेस्को की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी को उन्होंने उसका पर्यवेश किया। और साथ ही साथ और इस कंपनी के साथ साथ जो है वो अ, वो जो वैज्ञानिक गतिविधियां हैं वो सारी की सारी चीजें चल रही है। और मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इन ये। और जब एक प्राइवेट कंपनी जो थी, जो कि एक निजी निकाय थी, एक निजी कंपनी जो थी, और मैं बात कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज की, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है। और ये कंपनी जो है उन्होंने स्थिति प्राप्त की R&D इंस्टीट्यूट की, जो कि तार्किक नहीं है। और बेलारूस के गणतंत्र के अंदर जब एक निजी इंस्टीट्यूशन जो है वो वो एक R&D कंपनी का R&D की स्थिति प्राप्त करता है, और ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी और जो कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज की है, ये एक बहुत ही अनन्य केस है जो कि हुआ है। तो दूसरे देशों में या दूसरे क्षेत्रों में एक निजी कंपनी को ये R&D स्टेटस दिया जाए, ये 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 अधिकांश रूप से सरकारी कंपनियों को दिया जाता है। परंतु बेलारूस के अंदर इस कंपनी को, एक निजी कंपनी को, एक R&D का स्टेटस दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है इसके अंदर वाकई में बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग का कार्य किया गया है। और ये पूरा का पूरा रास्ता दिखाती है, ये दिखाती है कि किस प्रकार से आपको सर्टिफिकेशन प्राप्त हुई, आपने कहाँ शुरू किया, और किस प्रकार से आप बाजार में पहुंचेंगे। तो जो निवेशक और वो जो क्लाइंट जो वो ये पूछते हैं कि ये नतीजे कहाँ पर हैं, और वो चीजें कहाँ हैं जो जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन जो कि पिछले कुछ सालों में, जैसे कि 10 से ज्यादा रोलिंग स्टॉक जो है वो कार्यान्वित हुए, और अलग अलग तरीकों से अलग, और स्ट्रिंग्स ने जिस प्रकार से चीजों को कार्यान्वित किया, और दूसरे डिजाइन जो डॉक्टर यूनिस्की ने लागू किए, तो क्या ये जो है ये एक उपलब्धि नहीं है। और जब लोग ये टिप्पणी, और मैं काफी ऐसी टिप्पणियां सुनता हूँ, जैसे मैक्सिम, जो कि इधर उधर बात कर रहे हैं और सीधा मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। और वो जो खबर है जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, डॉक्टर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये खाली बातें ही हैं। परंतु मुझे नहीं पता दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप मुझसे चाहते हैं या इस प्लेटफॉर्म से ये चाहते हैं, और ये कहते हैं कि दोस्तों इस तारीख को, इस साल के अंदर हम लोग जो है लाभांश या डिविडेंड को प्राप्त करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि क्योंकि क ख ग ये सारी चीजें हो, देखिए ये सारी चीजें हों, परंतु मुझे ये लगता है कि ये चीजें जल्दी हों, और इसमें देर नहीं लगेगी, और ये इतनी जल्दी होगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को विकसित कर रही है, ये बहुत सारे कारकों के ऊपर निर्भर करता है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो प्रौद्योगिकी है उसको वैसे ही उन लोगों ने उसको कार्यान्वयन कर लिया है। कंपनी के पास, मैंने पिछली बार भी बताया था कि दो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि हम लोगों ने वो अवरोध को पार कर लिया है। तो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है वो वाकई में सतत रहने वाली है। 2014, 2018, 2020 को याद रखिए। तो निवेशक उस सालों में भी आ रहे थे, 2014, 2017 के जो निवेशक हैं उनको उनको याद रखने की बात है, एक जो मैं बोलने वाला हूँ, और वो ये कि आप याद करिए कि उस समय लोग क्या कह रहे थे। लोग उस समय डॉक्टर यूनिस्की के बारे में क्या बात कर रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि लोगों, और मैं ये कहूँ कि ये लोग जो थे, ये नकारात्मक लोग थे जो घृणा करते थे। तो 2014, 2017 में इन लोगों ने क्या टिप्पणियां की, तो क्या आप में से कुछ लोगों को याद है? और मुझे जरूर बताइए।
चैट के अंदर कि वो लोग क्या कह रहे थे जब हम लोगों ने उन लोगों को प्रस्ताव दिया कि वो हमारे आंदोलन के साथ जुड़े। लेकिन उस समय उन लोगों ने हमें क्या कहा? बहुत सारे नकारात्मक बहुत सारे नकारात्मकता थी। और किस प्रकार की नकारात्मकता थी, क्या आपको याद है? तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि ये हमारी जिंदगी में तो नहीं होने वाला है, कि कि ये एक पॉन्जी स्कीम है, धोखाधड़ी की स्कीम है। लोग यही कहेंगे कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो इस समय 2024 हो चुका है, और उन लोगों में से जिन लोगों ने ये कहा कि ये प्रौद्योगिकी काम नहीं करेगी, कि क्या वो लोग सही हैं? ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वाकई में अ, जो परियोजना है ये असंभव है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप लोग वाकई दिमाग से खाली हैं, ये वास्तविक नहीं हो सकती ये परियोजना, कि हो सकता है कि 30 साल में ये चीजें हों, या किसी को इस प्रौद्योगिकी की आवश्यकता भी है कि नहीं है। और जैसे कि बड़े बड़े जो 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 टाइकून्स हैं, जो 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 विशेषज्ञ हैं, या जो सरकारों के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको इन परियोजनाओं को लागू ही नहीं करने देंगे। परंतु आज देखिए, और विक्टर ने एक बहुत ही अच्छा दिलचस्प टिप्पणी दी है कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये लोग हमारे साथ वापस नहीं जुड़ सकते हैं। तो तो यहाँ पर सही है, बिल्कुल ठीक बात है। जो लोग इस चीज को मान सकते हैं, कि ये मान्यता हो सकती है कि अब बहुत देर हो चुकी है इस परियोजना में जुड़ने का। लेकिन यदि आप उन लोगों को, जो लोग नकारात्मक थे, उनको ये बताएंगे कि हमारी कंपनी ने क्या क्या कर लिया है, तो वाकई में वो अचंभित रह जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कोई भी नाम नहीं देने वाला हूँ, परंतु जो लोग, तो लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि आपके मैनेजर्स जो हैं वो आपको धोखा देने वाले हैं। और मैं यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो है मैं मैनेजरियल काम कर रहा हूँ। तो देखिए, हमारा हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन के लिए या लाभांश के को बांटने के लिए, परंतु हाँ, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार इस परियोजना का वित्त पोषण किया जाए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि याद कीजिए कि आप लोगों को सबको पता है कि कि जो उस समय जो वो देश था, जो सरकार थी, वो इस प्रौद्योगिकी की तरफ वफादार थी कि नहीं। और हम लोग इंतजार करते रहे। और मैं यहाँ उस देश का नाम नहीं लूंगा। और हम लोगों को उस देश से कोई समर्थन नहीं मिला। लेकिन क्या आपको कुछ खबरें प्राप्त हुई उस देश से? कोई भी? क्या आपको उस देश से कुछ खबर प्राप्त हुई? मैं यहाँ पर लाभांश की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या किसी ने बेलारूस से ये खबर सुनी कि टेक्नोपार्क और इस ट्रेन टेक्नोलॉजी के लिए आपने खबर सुनी कि नहीं सुनी? तो तो गौतर जो है वो बिल्कुल ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग सड़क, जो कि मिन्स्क के बाहर के शहर तक एक लाइन जुड़ेगी। और जब लीडर्स ने जो उस राजनीतिक लीडर्स ने जब वहां पर प्रोटोटाइप देखा और उस मॉडल को देखा, और जो भी मैंने अभी तक कहा, वो सारी की सारी चीजें जो है वो इस चीज को सत्यापित करती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो वाकई में एक उत्पाद के रूप में कार्य पे किया जा सकता है। और जो जो एको टेक्नोपार्क, जो जो देश जो सबसे पहले जो करेगा, तो उस देश ने पहले ही बोल दिया है इस बारे में। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल ही एक स्ट्रिंग रोड को बनाने वाले हैं।
या वो कमर्शियल परियोजना को आ, आगे बढ़ाने वाले हैं। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कि डॉक्टर ब्रzezinski के लीडरशिप के अंतर्गत है, उसको मान्यता दी है। तो जो लोग हमें घृणा करते थे 2014 में, 2017 में, कि ये बिल्कुल बिल्कुल वास्तविक नहीं है, तो वो अब ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर देखिए, अगर लोग जो काले को सफेद और सफेद को काला करते हैं, कहते हैं, तो शायद उनको जो है रंगीन ना दिखने की कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, और आप उसको ठीक नहीं कर सकते, और हम लोग उन लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो प्रादेशिक लोग हैं वो, और हम लोग जो है यहाँ पर कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारा जो अगला बिंदु है वो ये है कि जो कि आप लोगों ने जो बताया है, और वो ये कि, और मैं यहाँ पर इसको लेकर आता हूँ। और आप डॉक्टर गौहर, आप इस लिंक को देख सकते हैं, इसकी समीक्षा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इन चीजों को देख भी सकते हैं, इस लिंक को आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। तो कुछ लोग जो हैं इसको फिर भी जो है कहेंगे कि ये केवल और केवल बातें ही हैं। परंतु मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि आप किस चीज के बारे में सुनना चाहते हैं। शायद आप जो है, जो खाली बातें जो है वो आप अपने दोस्तों के साथ उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, निवेशकों के साथ, उपलब्धियों की, प्लेटफॉर्म जिसका हम सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे तो आप मुझे बताइए कि मेरे से आप क्या सुनना चाहते हैं, कि कल आपको लाभांश मिलने वाला है, डिविडेंड्स मिलने वाले हैं? जी नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो आप जरूर ये मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कि आप जब कहते हैं कि हवाई के लिए बन रहे हैं या ये खाली बातें हैं, तो इसका क्या मतलब है। आपने मुझे कहा कि मैं खाली बातें ही कर रहा हूं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो कंपनी ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं पिछले हफ्ते या पिछले 2 हफ्तों पहले का, हमारी बैठक थी। और मुझे जो है हमारे जो जो क्लाइंट्स हैं जो आज हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, सभी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर लिंस्की को बहुत सारा वित्त पोषण की आवश्यकता है। और उन्होंने वाकई में कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ इस पृथ्वी के ऊपर इस आंदोलन को शुरू किया। तो जो हमारे यूजर हैं जिनका नाम केसर है, तो आप अपना 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 असली जो नाम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बारे में मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो उपलब्धियों की मैं जो बात कर रहा हूँ, नतीजों की बात कर रहा हूँ, या जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये खाली बातें हैं, तो इत्यादि इत्यादि, तो यहाँ पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जो ये समझ पाए कि हमारा मंच क्या कर रहा है, और जो कंपनी जो जीटीआई द्वारा स्वामित्व में है, तो जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ी हुई है, और हम लोग केवल और केवल उसके हितधारक हैं, यानी शेयर होल्डर्स हैं। तो हम लोग जो है अलग अलग श्रेणियों में इसको बांट देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग केवल और केवल बातें ही कर रहे हैं। तो जीटीआई की अगर बात करते हैं, तो जीटीआई क्या करती है। तो कितने लोग हैं आज हमारे साथ इस कक्ष के अंदर, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ, तो आज हमारे पास आज 150 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो जो प्रश्न है जो बार बार दोहराए जा रहे हैं, क्या मैं तथ्य बता रहा हूँ या मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोगों को देखना है चाहिए कि कि जो पार्टी जो यहाँ पर मौजूद है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो 10 साल हो चुके हैं कि हम लोग निवेशक हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और हम लोगों की जो शुरुआत थी वो जनवरी 2014 में हुई थी। तो कितने सालों तक आपने जो है वो, आप मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कितने सालों से आप इस प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश हैं। जैसे कि
अगर आपने 10 साल है तो मैंने 10 साल है तो आप 10 लिखिए। 9 साल अगर आपने है तो 9 साल लिखिए। 4 साल से अगर आप इस कंपनी के साथ हैं, निवेशित हैं, तो आप 4 लिखिए। तो मैं यहाँ पर मैं बता दूं कि मेरे लिए 10 साल हो चुके हैं और आलिया कह रहे हैं कि 9 साल। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। तो हम लोग यहाँ पर सभी के सभी जो लोग हैं वो बहुत पुराने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 6 या 7 साल हैं। तो सबसे कम जो मैंने वर्ष देखे वो केवल 5 वर्ष थे। जी हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नए निवेशक तो बिल्कुल भी नहीं है। 8 साल, 5 साल। तो ठीक है। तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर जो है वो 5 साल से नए नहीं है। तो किसी ने कहा कि मेरे पति ने 2 साल पहले जो थे वो जुड़े थे। तो मैं यहाँ पर अधिकांश जो है वो बहुत पुराने निवेशकों की बात है। तो आप लोगों को पता है कि आपने किस चीज में निवेश किया। तो किसी ने कहा 3 साल। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये वो, निवेशक होंगे हमारे क्लाइंट के निवेशक हों, जो कि हमारे साथ 3 साल से हैं। तो कुछ लोग 2 साल के लिए हैं हमारे साथ हैं। तो प्रश्न ये है कि ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करती है। तो आप सभी लोग जो हैं वो शेयर होल्डर हैं। तो बहुत सारी और सभी लोग जो हैं वो शेयर धारक हैं। और जो शेयर धारक हैं जीटीआई जो है उसके आप संरचना का हिस्सा है। तो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी वाकई में क्या करती है, मेरा प्रश्न आपसे ये है। और मैं यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में आपके साथ बोलने वाला हूँ, परंतु उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि आपको वाकई में पता है कि हमारी कंपनी क्या करती है। जीटीआई ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करती है। तो कलिलोवो तिताना जो है वो एसर के नीचे है। तो आप 2014 से हमारे साथ। और आप जो है वो इस प्रौद्योगिकी के विकास के ऊपर आप खबरों को पढ़ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है मुद्दे पर नहीं आ रहे, खाली बातें कर रहे हैं। और हम लोग पिछले 2 घंटे के लिए जो है केवल खाली हवा में बातें करते हैं। तो अभी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है कि जीटीआई जो है उसकी क्या जो जीटीआई जो है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और एक बार जब आप मुझे ये प्रश्न का उत्तर देंगे मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऐसी कौन सी जो गतिविधियां हैं जो जीटीआई करती हैं। तो चूंकि आप 2014 से अगर आपने निवेश किया है तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि जीटीआई वाकई में करती क्या है। तो हम लोग यहाँ पर एक तर्क को अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और विक्टर जो है वो प्रश्न उन्होंने पूछा, क्या प्रश्न था कि ये जो पैसा था जो खर्चा किया गया, जिसको परिसंपत्ति के लिए जो खर्चा किया गया वो अभी तक शेयर्स में क्यों नहीं परिवर्तित हुआ है। तो अलेख आप अपने तो हम लोग यहाँ पर अगले हफ्ते जो है इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और मैं अपने सहभागी का इंतजार कर रहा हूँ। और आपका जो प्रश्न था मुझे उसका उत्तर आज प्राप्त हुआ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि वो इस चीज के ऊपर जो चर्चा है वो आपके साथ व्यक्तिगत रूप से करेंगे। तो ये मैंने आपको तो किसी ने कहा कि निवेश जीटीआई जो है वो निवेश करता है। और किसी ने कहा कि अलीना कह रहे हैं कि जीटीआई जो है वो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को का स्वामी है। तो यदि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जी हाँ। और हम आपने कहा कि हम लोग बेहतर जो जीटीआई कंपनी है एक वेंचर फंड है। जी नहीं, वो एक वेंचर फंड नहीं है, वेंचर कैपिटल फंड नहीं है।
मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, मुझे मुझे रूम से बाहर जाना पड़ा और मैं बताना भूल गया था कि ऐसा होना था। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और अब मैं वापस ऑनलाइन आ चुका हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो कनेक्शन है वो वापस हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। यदि सभी कुछ ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मुझे याद है कि मैं आपसे पूछ रहा था वो जो प्रश्न कि हमारी कंपनी जीटीआई जो है वो क्या करती है। तो जीटीआई कंपनी जो है वो वो बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि डॉक्टर यूनिस्की एनाटोली ने जो विकसित की है, और जो ये बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक संपदा जो यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये अलग अलग जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो जो दस्तावेज हैं, जिनकी एक एक मूल्य होता है। और इन सभी का जो मूल्यांकन है वो 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। जब ये प्रौद्योगिकी जो है वो बाजार में उतारी गई, तो हम लोगों को ये जो बौद्धिक संपदा है वो हम लोगों को प्राप्त हुई है। हम लोगों को अ, हम लोगों को उस कंपनी के अंदर एक शेयर प्राप्त हुआ है। और जो ये कंपनी है, और यदि मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, इंजीनियरिंग गतिविधियों की बात करता हूँ, तो अलग अलग जो कंपनियां हैं जो कि इसके अंतर्गत बनी है, परंतु जो मुख्य कंपनी जो है इंजीनियरिंग के लिए, और उसको कहते हैं स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। और इस कंपनी के अंदर बहुत सालों से इस कंपनी को पैसे प्राप्त होते गए हैं, वित्त पोषण, वित्त प्राप्त होता गया है कि ये प्रौद्योगिकी जो है वो विकसित हो, और साथ ही साथ उसका प्रमाणीकरण हो, सर्टिफाइड हो, और साथ ही साथ उसके जो डिजाइन हैं वो बनते रहें। और इसकी वजह से कुछ परिसंपत्तियां जो हैं वो बनी हैं। और ये परिसंपत्तियां जो हैं, ये परिसंपत्तियों का मूल्यांकन जो है वो सारी की सारे ऑडिट के बाद हुआ है। और कंपनी का जो बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी जमीन है, मशीनरी है, और बहुत सारी प्रौद्योगिकियां हैं। एको टेक्नो पार्क जो है, जिसके पास बहुत सारे ट्रैक्स हैं, और ये जो एको टेक्नो पार्क्स है इसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, और और कानूनी कंपनियां हैं, और हम लोग जो हैं इस इन कंपनियों के भी सह मालिक हैं। तो विक्टर ने ये पूछा कि जो पैसा इकट्ठा हुआ था और उससे जो परिसंपत्ति खरीदी गई, हम उसके जो सह मालिक क्यों नहीं है। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि आप जो हैं आप सह मालिक हैं उन सभी परिसंपत्तियों के जिन के हिसाब से, उस अनुपात में जिसके ऊपर आपने शेयर्स खरीदे थे। तो हम लोग वाकई में जो है सह मालिक हैं, को ओनर्स हैं। तो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो वो मुख्य कंपनी है, जो कि सारी की सारी बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को का मालिकाना हक रखती है। और अब जो प्रश्न ये आता है कि हम लोग जो है RSW सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म है, तो जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, क्या हम उसको किस प्रकार उसको कार्यान्वित कर रहे हैं, किस प्रकार से हम लोग जो है इस प्रौद्योगिकी को जो है वो बाजार में लेकर आ रहे हैं, और किस प्रकार से हम लोग अलग अलग तरीके से वाणिज्य बातचीत कर रहे हैं, ताकि जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो वास्तविक हों। किस प्रकार से स्ट्रिंग रेल और स्ट्रिंग रैंप्स जो हैं वो विकसित किए जा रहे हैं। क्या हम लोग इनके कर्मचारी हैं, या हम जो है एक ऐसी कंपनी है जो कि प्रौद्योगिकी के साथ जो है वो इम्प्ली जो प्रौद्योगिकी जो है वो किस प्रकार से उसका कार्यान्वित हो रहा है। तो एलिना यानी कि एसर ने ये प्रश्न पूछा था, और अगर मैं
ठीक बात कर रहा हूँ तो हेलेना उनका शायद नाम था। मैं माफी चाहूंगा कि मेरी जो पूरी की पूरी चैट है वो जा चुकी है। अच्छा, तो ये तथ्याना थी। तो RSW सिस्टम जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारे सहभागी हैं स्काई व्यू, जो टेक्नोलॉजी स्काई स्काई टेक्नोलॉजीज की, तो वो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो जो चीजें मैंने बात की, जिन कंपनी की मैंने बात की, परंतु ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये RSW सिस्टम्स और एक और पार्टनर्स थे जिन्होंने, एक और निवेशक थे, उन्होंने वो वो क्यों बाहर चले गए, और क्राउड फंडिंग की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए और इस प्रौद्योगिकी को लॉन्च करने के लिए, तो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग जो सारांश में जो हम लोग बात कर सकते हैं, और इस प्रश्न को भी बात कर सकते हैं जो तत्याना ने जो पूछा कि हम लोग क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो अलग अलग प्रौद्योगिकियों के साथ बटे हुए हैं, श्रेणीबद्ध हैं। तो हमारे पास दो तरह के क्लाइंट्स होते हैं, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय, पैसिव एंड एक्टिव। तो 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 पैसिव यानी निष्क्रिय क्लाइंट्स वो हैं जो कि जिन्होंने निवेश किया और केवल वो इंतजार कर रहे हैं लाभांशों का, फायदे का। परंतु मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है किसी भी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नहीं है। परंतु हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो प्रक्रिया है, अमल करने की प्रक्रिया है, कार्यान्वयन करने की जो जो क्रियान्वित करने की जो जो अ, जो जो समय जो उसमें लग रहा है, जो 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 वो प्रक्रिया है, उसको हम थोड़ा सा तेज जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्राउड फंडिंग मुहैया करा सकते हैं। तो हमारे पास दोनों जो है, निष्क्रिय और सक्रिय, यानी कि पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं। और और यदि आप डॉक्टर यूनिस्की की वेबसाइट के ऊपर जो खबरें आती हैं, अगर आप उनका सक्रिय रूप से, अगर आप उनका अनुसरण करते हैं, तो उसको करने के लिए आपको जो है वो उसको बुकमार्क कर लेना चाहिए। UST जो कंपनी है, उन्होंने यूट्यूब चैनल यूनिस्की इंजीनियरिंग को जो है, उसको उन्होंने जो है उसके वो सदस्य हैं। तो सारी की सारी चीजें जो कि प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मेरी जो बैठकें और जो कॉन्फ्रेंसेस जो मैं जिनके अंदर जिनको मैं बात करता हूँ, तो मैं आपको बताना, तो इन मंचों के ऊपर, इन सम्मेलन या इन मीटिंग्स के अंदर मैं आपको जो है बताता रहता हूँ कि क्या क्या चीजें जो है वो नई हुई हैं। और आपको बताता हूँ कि यूनिट्सकी, डॉक्टर यूनिट्सकी की एक वेबसाइट भी है, उनका यूट्यूब चैनल भी है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, क्योंकि डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो केवल और केवल स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के साथ ही नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि वो नवोन्मेष और जो जो कि कृषि कृषि बाजार है, जो कृषि है, कृषि के अंदर जो नवोन्मेष परियोजनाएं हैं, उनके साथ भी वो जुड़े हुए हैं। तो ह- तो उनके पोर्टफोलियो में जो भी चीजें हैं वो तीन परियोजना है। तो पहला यूथेरिया टेक्नोलॉजी, स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज, और एक अलग टीम है जो कि केवल और केवल डिजिटलीकरण के ऊपर बात कर रही है। और फिर स्पेस वे टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर हम लोग रॉकेट्स की बात करते हैं और अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं। और इसके अंदर भी अ, जो बढ़ोतरी है, जो विकास जो है, वो भी अच्छे दर्जे का हुआ है। एनाटोली यूनिट्सकी ने एक बहुत बड़ा जानकारी को बढ़ावा दिया था। और बड़े बड़े नाम जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में थे, उनके साथ बातचीत की, और साथ ही साथ जो उनकी प्रौद्योगिकियां थी, उनके फॉलोअर्स बने, और वो इसके बारे में जो जो उनकी प्रौद्योगिकियां हैं उसके पर वो बातचीत भी करते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है दोस्तों आपसे, कि क्या आप सक्रिय रूप से आप भाग लेते हैं, या आप निष्क्रिय रूप से भाग लेते हैं? क्या आप एक्टिव हैं या आप पैसिव पार्टिसिपेंट्स हैं? तो मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा आपके जवाब, और मैं वाकई में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, और ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रश्न आते कहाँ से हैं। लेकिन हम सभी लोग यहाँ पर वयस्क हैं और हम लोग सब बड़े लोग हैं।
और इसीलिए आप लोगों को ये समझना, आप समझ पाएंगे कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है वो ये कहती है कि वो इस कार्य को कर रही है इस चरण के अंदर। तो तो इस कंपनी ने जो वायदा किया था और वायदा करने के बाद उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर हो रही है क्योंकि उसके पीछे भी कुछ व्यापक कारण भी हैं। कई बार फंडिंग वित्त पोषण की कमी है, और कई बार लागत को और दक्ष बनाया जाता है, लेकिन फिर भी जो वायदे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं। शायद थोड़ी सी देरी जरूर हुई है। तो कुछ लोग कह रहे थे पिछली बार कि उन्होंने 2020 में आईपीओ का वायदा किया था, और 2024 में जो जो प्रौद्योगिकी के चरण जिस प्रकार से विकसित हो रहे थे, तो आईपीओ जो है वो तभी होता यदि सारी की सारी चीजें जो है, जो वो एक योजना के अनुसार चली होती। परंतु एक चरण से दूसरे चरण में जाने वाला के लिए दो चीजों के ऊपर वो निर्भर करती है। पहला वित्त पोषण, पैसा, और दूसरा जो कार्य जो है प्रौद्योगिकियों के ऊपर किया गया है। तो क्योंकि वित्त पोषण का अभाव था, का पैसे का अभाव था, परंतु जो कार्य था, कार्य जो था वो कार्य जो है वो लागत को कम करके किया गया, और इसी वजह से जो देरी थी वो हुई। परंतु फिर भी इसने विश्वसनीयता को बढ़ावा दिया है। तो एनाटोली की जो जो एनाटोली की जो विश्वसनीयता थी वो बढ़ी, उनकी साख जो थी वो बढ़ी थी। तो यहाँ पर दो दो कारण थे। एक की वित्त पोषण की कमी थी, पैसे की कमी, और दूसरा जो लागत को कम करने का एक चुनौती थी। तो 2018 में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सकारात्मक एक पर्यावेश था, जो कि इतना वित्त पोषण जो है वो किया, वो जो है वो जोड़ा जाएगा, परंतु फिर भी इतना वित्त पोषण जो था वो हुआ नहीं। और उसके बाद जो कार्य था उसकी लागत को कम करने के लिए भी उस कार्य की लागत को कम करते हुए उस कार्य को पूरा किया गया, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो 2013 में एक मील पत्थर प्राप्त हुआ था, जब वो पूरे के पूरी व्यवसायिक योजना जो थी वो बताई गई थी, और बहुत सारी चीजों का उसके अंदर जो था अ, वो उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। कुछ चीजें जो छुपी हुई थी, जैसे कि एक उदाहरण दूं, यदि आप अपना घर बना रहे होते, निर्माण करते हैं, तो बहुत बार जो आपका जो मूल बजट होता है और जो असल खर्चा होता है, ये दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि उसके बाद इंटीरियर डिजाइन के अंदर देखते हैं, तो आप किसी दुकान पर जाते हैं और आप सोचते हैं कि जो निर्माण का जो सामग्री है वो मैं खरीद लूं, और वहां पर आप देखेंगे कि यूरो और डॉलर का रेट बदल जाता है, लेकिन लेकिन जब आप उस दुकान पर जाते हैं, तब आपको लगता है कि जो आपने अनुमान लगाया था उससे दुगना खर्चा हो रहा है। तब आप सोचते हैं कि मुझे शायद थोड़ा सा अलग कर लेना चाहिए, या मुझे किसी और सामग्री का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, या मुझे ये सोचना चाहिए कि जो वॉशिंग मशीन जो है वो मुझे मुझे रसोई घर में रख लेनी चाहिए। परंतु उस समय आपने पहले नहीं सोचा था। लेकिन अब आप क्योंकि लागत बढ़ जाती है तो आप कुछ नए तरीके सोचते हैं। तो आपको मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किस प्रकार से चीजें जो है वो ज्यादा समय लेती हैं। कई बार चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं चलती, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि नई प्रौद्योगिकी जो कि कभी पहले देखी नहीं गई थी इस पृथ्वी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए यदि कुछ देरी लगती है। ये सामान्य है। मुझे ये मालूम है कि एक नई प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ है, और ये केवल और केवल जो है 3 या 5 सालों में आप इसको अमल होता हुआ नहीं देखेंगे। परंतु हाँ, उस समय 2015-2016 के अंदर आपको ये देखना होगा कि हम लोगों ने कौन से देश में शुरू किया, और जब असल निर्माण कार्य जब शुरू हुआ, और जो असल निर्माण कार्य था वो 2016 में शुरू हुआ। और अगर 2016 में निर्माण कार्य शुरू हुआ है
तो 2018 में आप आईपीओ कैसे कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं, कैसे संभव हो सकता है? तो इसीलिए अगर आपने इस विचार से आप जुड़ गए थे कि पहली की कि पहली गतिविधि के बाद 2 साल के अंदर आपको आईपीओ प्राप्त होने वाला है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से अनुसंधान, अच्छे से शोध कर लेनी चाहिए कि आईपीओ जो है तभी निकाला जाता है। आईपीओ आप तभी निकाल सकते हैं जब कंपनी जो है वो काफी सालों से परिचालन में हो, और 2 सालों के अंदर आईपीओ जो है वो अविश्वसनीय है, ये वास्तविक नहीं हो सकता था। तो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसके अंदर हम लोगों ने निवेश किया, जिसके हम शेयर धारक भी हैं, कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम सभी को इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी जानकारी जो मैंने आपको दी वो बिल्कुल स्पष्ट है, और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ ऐसा। मुझे उम्मीद है कि आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ या मैं खाली बातें कर रहा हूँ। तो मुझे ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, और जब आप ये प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो मैं लियाना का प्रश्न का भी उत्तर दूंगा कि आपने हमेशा, आप ये कहते हैं कि वित्त पोषण की कमी थी, तो हम लोगों को शायद जो 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 स्रोत रहे आय, जो जो वित्त पोषण के जो स्रोत रहे उनको हम लोगों को कम लागत पर उठाना चाहिए था। देखिए अलेना, देखिए क्या होता है कि अ, हम लोगों को जब वित्त पोषण प्राप्त हुआ तो 50% प्राप्त हुआ, लागत जो थी वो हम लोगों ने कम की, और हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग 40% मार्केटिंग कॉस्ट से वो पैसा जो है वो निकालने की कोशिश करें। और जो गतिविधियां जो 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 हम लोग कर रहे थे वो, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक था, वो तार्किक था। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी देना चाहता हूँ व्यवसायों से लेकर। एक कोका कोला कंपनी या एक मैकडोनल्ड्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो कंपनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, जो कि अपने 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 उत्पाद और सेवाएं जो बेचती हैं, तो वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। और यदि एनास्टोलिया ने क्राउड फंडिंग मॉडल की जगह पारंपरिक प्रमोशन, प्रचार करने के मॉडल्स का इस्तेमाल किया होता, और अगर उन्होंने सहबद्ध मार्केटिंग का इस्तेमाल नहीं करते, तो मुझे लगता है कि अभी तक हम लोगों को ये नतीजे प्राप्त नहीं होते जो हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। यदि लोग जो है प्रचार से अपने कमीशन नहीं प्राप्त करते, तो उनका जो जो प्रेरणा थी वो खत्म हो जाती। लेकिन इस व्यक्ति को ये पता है कि उनको 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 प्रोत्साहन प्राप्त होता है कि वो नए लोगों को बुला सकें, अपना करियर बना सके, पैसे कमा सकें। तो ये प्रोत्साहन, ये प्रेरणा लोगों को जो है कमीशन के माध्यम से हमेशा प्रेरित करती रहेगी। वैसे यूलिना, अगर आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, और एक नई बिल्डिंग के अंदर आप एक घर खरीदना चाहते हैं, और बिल्डर कहता है कि यदि आप 5 लोगों को और लेकर आएंगे जो कि इस बिल्डिंग में घर खरीदेंगे, तो हम आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको देंगे आपके घर के ऊपर। और उस समय आप बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाएंगे, और हम लोग जो है आपको सबसे ऊपर वाला घर देंगे जहां से आप बहुत अच्छा जो है आप देख पाएंगे, आप व्यू बहुत अच्छा देख पाएंगे, दार्शनिक व्यू आपको दिखाई देगा। पर हमारे लिए यहाँ पर ये देखिए कि थोड़ा सा फर्क है कि हम लोगों को यहाँ पर लगातार तरीके से प्रचार करना है। तो प्रश्न ये है कि कितनी देर तक हम लोग प्रचार कर सकते हैं, और कितना हम लोग कितनी देर तक हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये एक और जो एक और बिंदु जो इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। तो कोई कह रहा है कि सिगार क्लब्स की बात कर रहे हैं कुछ, तो मुझे नहीं मालूम कि आप सिगार क्लब्स की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। आप इसकी पुष्टि कीजिए। तो प्रश्न मैंने जो आपसे ये पूछा था, इलियाना ने ये कहा कि ये कि आप जो है बहुत ही मूल बातें कर रहे हैं, कि
और ये बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग मूल बातों को नहीं समझते हैं। परंतु आप मुझे ये बताइए कि जो चीजें मैंने आपको पहले बताई, क्या वो खाली बातें ही थी, या ये वाकई में जो मैंने बातें की हैं वो बिना किसी मतलब की थी? जैसे कि मैंने आपको जीटीआई के बारे में बताया, जैसे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये वो प्रचार कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, विपणन कर रहा है, और जीटीआई जो है वो निवेश कर रहा है प्रौद्योगिकी के विकास के ऊपर। तो तो मुझसे आप डिविडेंड्स की बात अपेक्षा नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे पूरे के पूरे आज दर्शकों के अंदर जो सबसे युवा निवेशक है वो 3 साल है। 3 साल पहले उन्होंने निवेश किया, और बाकी सभी के लोग जो है वो बहुत बहुत पुराने हैं। तो तो हमारे पास आज यहाँ पर 150 लोग हैं, और हम लोगों को थोड़ा सा और सक्रिय होना चाहिए। आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि मैं कहीं अपने आप से तो बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे जरूर कुछ टिप्पणियां दीजिए, कुछ तो बोलिए, कुछ कुछ चैट में लिखिए। क्या हम लोगों को डिविडेंड्स जो है सभी प्रकार के यातायात के स्रोतों से मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन से मिलेंगे? देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं केवल कार्गो, हाई स्पीड और शहरी। और यदि आप अंतरिक्ष परियोजनाओं की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अलग है, और हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो कोई और है तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और जब तक आप अपना फीडबैक लिख रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं? हमारी पिछली बैठक के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ही केवल एक बड़े स्तर की टेक्नोलॉजी है, जो कि क्राउड फंडिंग द्वारा जो है जिस पे निवेश किया गया था। और 20वीं सदी के अंदर और पूरे इतिहास के अंदर ये सबसे बड़ी परियोजना है। और अ, एक महिला ने लिखा कि आप मैक्सिम पूरे तरीके से आप ईमानदार नहीं है। बहुत सारी परियोजनाएं अभी हैं, तो मुझे मालूम है कि आप किन परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं एक कंपनी की, जो बात कर रहे हैं, जो कि जिन्होंने एक इलेक्ट्रिकल पहिए का इजाद किया। एक और कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बना रही है। परंतु दुर्भाग्य से जो लोग जिन्होंने मुझे ऐसा लिखा है, तो मैं आपको बता दूं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और डॉक्टर यूनिन्सकी जो है वो मुझे जो है वो मोटर व्हील्स की जहां तक बात करें, जो 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 मोटर पहिए की जो बात कर रहे हैं, और इस अवधारणा को डॉक्टर यूनिट्सकी ने बहुत साल पहले इजाद किया था, और ये रोलिंग स्टॉक के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने इस पहिए को बेलारूस के अंदर एक्सपो में देखा था। और ये किस प्रकार इस्तेमाल होता है, ये एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है, और जो कि इंजीनियर्स ने विकसित किया है। स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के इंजीनियर्स ने जिसका इजाद किया है। जो सॉफ्टवेयर, जो कि दोस्तों सोचिए कि कितना समय लगेगा और कितनी मेहनत लगेगी कि एक जो है आप सॉफ्टवेयर को जो है विकसित करें, जहां पर वो सुरक्षित सॉफ्टवेयर हो, और साथ ही साथ सुरक्षित रूप से इन रोलिंग स्टॉक को चला सके। और रोलिंग स्टॉक का जो है वो कितने समय में वो जो है रुकेगा, अगर कोई जानवर आगे आ जाता है। तो देखिए, डॉक्टर यूनिस की बहुत आगे की सोचते हैं, और रोलिंग स्टॉक जो है, डॉक्टर रोलिंस और डॉक्टर और उन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने अपने अपने जो उनके जो परिचालन है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो लगे हुए हैं रोलिंग स्टॉक के अंदर, उसमें डॉक्टर यूनिट्स की उसके आगे
खुद खड़े हुए थे एक प्रयोग के लिए, और कि वो देखने के लिए कि यदि कोई आगे आ जाता है तो ये कितनी देर में रोलिंग स्टॉक रुकेगा। ये आप वीडियो आपने शायद पहले भी देखा हुआ है। परंतु जो ये स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, जो कि क्राउड फंडिंग द्वारा निवेशित है, तो ये एक प्रकार की अनन्य कंपनी है। और यदि मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो आप मुझे बड़े शब्दों में वेबसाइट और कंपनी का नाम दीजिए जो कि इससे बड़ी है, और जो उसका उस कंपनी का कितना बड़ा जो है, कितने कितने कैपिटलाइजेशन है उसकी। तो आप अगर कैपिटलाइजेशन को देखेंगे, तो वित्तीय मूल्य को देखेंगे, तो आपको मैं ये बता दूं कि आने वाले समय में, आने वाले 50 सालों के अंदर जो हमारी कंपनी है उसका जो मूल्य है वो एप्पल से भी ज्यादा होगा। तो देखिए, मैं ये बता देता हूँ क्यों। देखिए, एप्पल का एक उत्पाद है, मेरे पास, मुझे एप्पल बहुत पसंद है। मेरे पास एप्पल का फोन है, एप्पल का कंप्यूटर है, एप्पल की ईयरबड्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। और ये शायद ट्रिलियन डॉलर्स का मूल्य रखती है। तो ये किस प्रकार से इसका मूल्यांकन होता है? क्या इस कंपनी के पास इतनी परिसंपत्ति है जो कि इसका मूल्यांकन कर रही है, इतना मूल्यांकन कर रही है? क्या इतनी, कितनी बड़ी परिसंपत्ति है? देखिए, हम लोग यहाँ पर पेशेवर निवेशक नहीं है, और मैं यहाँ पर ये केवल सरल चीजें पूछ रहा हूँ कि क्या एप्पल कंपनी के पास असल में इतनी परिसंपत्ति है जिसके मूल्य ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स है? जी नहीं। गूगल के पास? जी नहीं। फेसबुक? जी नहीं। amazon? जी नहीं। जो शीर्ष 10 कंपनियां इस श्रेणी के अंदर हैं, उनके पास वाकई में इतनी परिसंपत्ति नहीं है जहां पर वो, जिसका वो मूल्यांकन कर सके। अब आइए स्ट्रिंग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर देखते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक जो बौद्धिक संपदा है, वो 400 ट्रिलियन डॉलर्स की मूल्यांकन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास पहला पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि ये केवल 3 किलोमीटर चले या 10 किलोमीटर चले, परंतु जब ये पहली बार आएगा तो दर्जनों ट्रैक्स जो हैं वो 2 या 3 सालों में बन जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो पहले का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही पहला होगा उसके बाद जो विस्तार है वो बहुत शीघ्र हो जाएगा। और अगर आज उनके पास जो 4,000 लोगों का स्टाफ है, तो पहली परियोजना के बाद उनको शायद दर्जनों हजारों लोग रखना होगा, क्योंकि उनको नए प्रशिक्षित लोगों की भी आवश्यकता होगी। तो इसीलिए, तो वाकई में आप ये देखेंगे कि जो 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 ट्रैक्स डलेंगे, जो पटरियां डलेंगी, वो वाकई में जमीन पर डलेंगी, और वो इसी के अंतर्गत डलेंगी। जहाँ पर स्टेशन बनेंगे वो वाणिज्य दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और और तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि जो बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और उसके बाद जो परिसंपत्ति बनेगी। तो अब प्रश्न ये है कि जो ये स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इसका कितना कितना मूल्यांकन होगा? थोड़ा सा तर्क लगाकर सोचिए। और मैंने इसके बारे में सोचा है। मार्च और अप्रैल में 2014 की अगर मैं बात करूं, और जब ये पहला बार ये मुझे विचार आया, और 2024 के अंदर मैं इसके पूरे के पूरे पूरे आकार को जो मैं देख पा रहा हूँ, और कंपनी के पास अब जो है लगभग लगभग जो उत्पाद तैयार है, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो उनकी दिलचस्पी है वो बढ़ती जा रही है। तो ये एक एक बीच का एक समय था। ये एक इनोवेशन कंपनी के लिए, एक नवोन्मेष कंपनी के लिए, ताकि वो नवोन्मेष कर सके और निवेश प्राप्ति कर सके। तो हम लोग इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हैं। तो जब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इतने सालों में क्या किया गया, तो बहुत सारी चीजें इतने सालों में जो है वो हम लोगों ने प्राप्त की है। बड़ी 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 चीजें हम लोगों ने प्राप्त की हैं। और अगर ये अभी भी कुछ लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप वाकई में
जो है एक अलग वास्तविकता में रह रहे हैं, जहां पर आपको लगता है कि नवोन्मेष, नई प्रौद्योगिकियां जो है वो केवल और केवल कुछ मिनटों में, कुछ क्षणों में ही पैदा हो जाती है। देखिए, ये क्रिप्टो बाजार नहीं है जहां पर आप एक टोकन बना सके केवल कुछ घंटों के अंदर, बस एक कोड डाला और उसके बाद आपने बाजार में डाल दिया। जी नहीं, हम लोग यहाँ पर एक वास्तविकता की बात कर रहे हैं, वास्तविक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक ऐसी वास्तविक परियोजना की बात कर रहे हैं जो पूरे के पूरे इन पूरी की पूरी उद्योग को बदल सकती है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को आभास करें कि ये प्रौद्योगिकी क्या चीज है। तो जब लोग जो है हमारी आलोचना कर रहे हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आपका हक बनता है ये आलोचना करने का, परंतु आप अपना विश्लेषण जरूर कीजिए, अपना अपनी मेहनत जरूर कीजिए, रिसर्च जरूर कीजिए, शोध जरूर कीजिए। और वाकई में आपको मैं बता दूं कि हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम लोग आपके पैसे जो है, जो कि आपको धोखा दें। और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी चीज हम लोग गैर कानूनी करें। जो भी आप लोगों के साथ आपको जो भी वायदा किया गया था, वो वायदा भी पूरा किया गया है। और हम लोग इस प्रकार की बैठकें जो हैं, जो ये कॉन्फ्रेंस है, वो हम लोग क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए ताकि हम लोग आपको बता सकें कि कि जो जानकारी है वो स्पष्ट रूप से आपके साथ साझा कर सकें। और जो भी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं वो हम आपके साथ साझा कर सकें। साथ ही साथ हम लोग जो है जो स्ट्रिंग जो जो ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे पास एक ऐसा मंच भी है जहां पर हम लोग लोगों को बोलते हैं कि आप सहमालिक बन सकते हैं स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के। तीसरा, हम लोग नींव रख रहे हैं क्राउड फंडिंग प्रणाली के अंदर, हम लोग परिचालन कर रहे हैं। और अगर हम आने वाले 10 सालों के अंदर पूरे विश्व को हम लोग ये दिखा पाए कि हम लोग पूरे के पूरे एक उद्योग को विकसित कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाकई में हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम लोग जो है व्यक्तिगत परियोजनाओं को इस उद्योग के अंदर कर पाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मल्टी लेवल बिजनेस जो कि हमारा जो नेटवर्क है उसकी क्या क्या उसकी उसकी कितनी क्षमता है, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अपना करियर हमारे साथ बना सकते हैं, अपना भविष्य हमारे साथ बना सकते हैं। यदि आप पेशेवर तरीके से जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से बिक्री करेंगे, और मैं यहाँ पर बड़ी बिक्री की बात कर रहा हूँ कि आप बड़े बड़े निवेशकों के साथ आप बात करेंगे, तो आपको हमारी तरफ देखना चाहिए। और और हम लोग जो है 2 महीने हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है कि हम लोगों ने जो है संदर्भ जो है वो हम लोगों ने विकसित कर लिया है। और माइक्रो एंड ग्लोबल के नाम से हम लोग इसको विकसित करेंगे। ये एक नया क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म होगा, और इसके अंदर एक नया बैक ऑफिस होगा, नया मार्केटिंग प्लान होगा, और इसके अंदर एक बिल्कुल नया रवैया होगा। और हमारे पास 2.5 महीने हैं ताकि हम लोग तैयारी कर सकें, और इसका जो है लॉन्च, इसका शुभारंभ कर सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले अक्टूबर तक इस चीज को पूरा कर लें। हो सकता है कि कुछ देर हो, लेकिन जो हमारी जो प्रारंभिक लॉन्च की जो तिथि है वो 1 अक्टूबर ही रहेगी। तो उससे पहले क्या होगा? तो अगले कुछ हफ्तों के अंदर हम लोग जो है तैयार करेंगे प्रस्तुतिकरण एक नए मार्केटिंग प्लान का, ताकि आप लोग समझ सकें कि आप किस प्रकार का करियर हमारे साथ विकसित कर सकते हैं। और इस समय हम लोग जो है प्रादेशिक मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स ढूंढ रहे हैं अलग अलग देशों के अंदर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास कजाकिस्तान के अंदर ऐसे प्रतिनिधि मौजूद हैं, मेजर जेनिलिया बैकलेवा। और हमारे पास दूसरे क्षेत्रों के लिए भी लोग मौजूद हैं। और अब आपके पास मौका है कि आप हमारे टीम के अंदर अपनी जगह बना सकें। और हम लोग एक अलग बैठक करने वाले हैं जो कि अपने अपने आवेदन हम लोगों को देंगे,
जो कि और जो हमारे साथ बैठेंगे हमारे और हम लोगों ने एक ऐसी बैठक की थी पहले, लेकिन हमने उसको रोक दिया क्योंकि हम लोग अपने जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपना काम शुरू कर लें, उसके बाद हम लोग इन बैठकों को आगे बढ़ाएंगे जो कि बंद कमरों के अंदर होगी। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आप सक्रिय रूप से अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जब नया प्लेटफॉर्म आएगा और जब ये नया प्लेटफॉर्म काम करना शुरू करेगा तब आप पूर्ण रूप से तैयार होंगे। और आने वाले समय में हम लोग आपको डिस्काउंट्स भी देने वाले हैं ताकि आप अपने जो है अपने सेल्स वॉल्यूम की तैयार कर सकें और आप अपने इन्वेस्टमेंट पैकेज, निवेश पैकेज जो है वो भी तैयार कर सकें, क्योंकि आपके सामने जो 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 जो, जो समर प्रमोशंस आने वाली है वो वाकई में आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सक्रिय और निष्क्रिय जो निवेशक होते हैं, तो जो लोग पैसिव होंगे, निष्क्रिय होंगे, आपके पास बहुत ही आकर्षक जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान्स होंगे। और आप तो हम लोग वाकई में बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स लेकर आने वाले हैं दोनों एक्टिव और पैसिव यूजर्स के लिए। तो ये बहुत शीघ्र आपके पास जो बैठक है वो होने वाली है। और जिस प्रकार से चीज करते हैं तो आप लोग इसके लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं। और अपना तो नए पार्टनर्स के लिए आप काम करें तो अगले शनिवार को मैं एक बार जांच लेता हूँ, मुझे एक क्षण दीजिए। तो 20 जुलाई को हम लोग एक प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं। और ये कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, यहाँ पर खबरें नहीं दी जाएंगी, प्रश्नोत्तर नहीं होगा। 20 तारीख को हम लोग एक प्रस्तुतिकरण करेंगे और 18 को हम लोग जो है एक बैठक आपके साथ करेंगे जिसमें हम लोग तैयारी करेंगे। और ये तैयारी की जो बैठक होगी वो प्रश्न होगा, इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से लोगों को आप इस 20 तारीख की बैठक में आप बुला सकते हैं। तो जो लोग ये समझ पाएंगे कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के अंदर इस समय क्या फायदे हैं निवेश करने के, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अभी भी ये सोचते हैं कि आज भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। पर मैं आपको यहाँ पर वाकई में अ, मैं आपको बताता हूँ कि आज के भी डिस्काउंट्स के स्तर के अनुसार काफी लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर हमारे पास बेहतर डिस्काउंट्स होंगे। और गुरुवार को मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्यों मुनाफेदायक है कि आप जो है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर आप क्यों निवेश करते हैं। तो वाकई में और थर्सडे को हम लोग इस बैठक को करेंगे। और हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं 3 भाषाओं के अंदर। और ये एक प्रस्तुतिकरण है और बहुत ये प्रस्तुतिकरण स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर होगा, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा, हमारे RSW सिस्टम्स के ऊपर होगा। और जो जो तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस बाजार को विकसित किया जा सकता है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में भी, माइक्रो एंड ग्लोबल के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहूंगा कि हम इस मंथ के अंत तक क्या करने वाले हैं। तो आप अपने कैलेंडर में, अपने शेड्यूल में लिख सकते हैं कि और 25 तारीख को हमारे पास एक और कॉन्फ्रेंस होगी और 27 तारीख को एक और प्रस्तुतिकरण होगा। और शायद 3 और दिन होंगे, शायद बुधवार तक हम लोग कि कितने आप सक्रिय होंगे इस के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग आपको बताएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो प्रमोशन जिसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं निकट भविष्य के अंदर, वो 3 महीने में उसको दोहराया नहीं जाएगा जब तक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च या उसका शुभारंभ
नहीं हो जाता। तो हमारे लिए जो नई प्रमोशंस हैं वो अगले 3 महीने तक नहीं होंगी। और यदि आप नए पैकेजेस को जरूर देखिए और देखें कि आप अपने जो व्यक्तिगत निवेश जो आप करना चाहते हैं, और यदि आप अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, आपके सहकर्मियों की, जिन लोगों को आप जानते हैं, तो वाकई में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों ने आपको पागल समझा था, तो आप उनके पास वापस जाइए, उनको कहिए कि 2017 में जब मैंने आपको स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया था, तो वो आपसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने कुछ किया। तब आप उनको बता सकते हैं। और आप उनके साथ प्रस्तुतिकरण वीडियोस डॉक्टर यूनित्सकी के उनको दिखा सकते हैं, उनको रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। और वो लोग काफी आश्चर्यचकित होंगे। और उसके बाद प्रश्न आएगा कि वो कितना उसके अंदर निवेश करना चाहेंगे, $100, $1000, $5000। और ये सारी की सारी चीजें उनकी जेबों की गहराई के ऊपर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर गुरुवार को हम लोग प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार हो रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे। और गुरुवार को हम लोग एक तैयारी बैठक करेंगे। और उसके अगले शनिवार को हम लोग एक और प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो ये 4 बैठकें इस महीने के अंदर होने वाली हैं। और शायद एक अलग बैठक होगी कजाकिस्तान के पार्टनर्स के लिए। और जो भारत के जो पार्टनर्स हैं, तो हम लोग उनके साथ भी बैठकें करेंगे। और बहुत ही कम लोग होंगे उस बैठकों के अंदर। परंतु ये सभी बैठकें जो हैं, ये सारी की सारी बैठकें लाइव होंगी, इनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी और इनको 3 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। तो दोस्तों, मेरे पास अभी भी बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, परंतु अब हम लोग जो हैं, हमारे पास समय का अभाव है। और मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं। तो लोग जो हैं वो प्रश्न पूछते जा रहे हैं। लोग पूछे जा रहे हैं कि जो लोग जो ऐतराज उठाएंगे, जो ऑब्जेक्शंस उठाएंगे, उसका प्रबंधन कैसे करना है। जी हाँ, बिल्कुल। हम उसका जवाब देंगे। मेरे पास अभी भी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं साझा करने के लिए। लेकिन यदि मैं उसको अभी करूंगा तो मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बाहर का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो एयर कंडीशनिंग चल रहा है, तो तापमान कमरे में कम हो जाता है, लेकिन आपकी आवाज पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन गुरुवार को हम लोग देखेंगे कि जो आपको ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो जो आपको जो भी प्रश्न आते हैं, तो उसका उत्तर कैसे देना है, प्रबंधन कैसे करना है। तो हम लोग इस महीने जो है एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू मैं करूंगा। और कि किस प्रकार से जो शेयर्स हैं वो SWGT टोकन्स के अंदर किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो किस प्रकार से जो आपके शेयर्स SWGT टोकन्स के अंदर बदल सकते हैं, आप सपोर्ट से बात कर सकते हैं। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने ये कहा कि डॉक्टर यूनिस्की को मैं बुलाऊं इंटरव्यू के लिए, परंतु ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, हर एक व्यक्ति को वो करना पड़ता है जो उनको करना है। तो एनाटोली के पास उनका अपना ही एक समय सारिणी है। और वो जो कार्य कर रहे हैं वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो जैसे कि वो डिजाइन कर रहे हैं, और बहुत ही हाल ही के अंदर उन्होंने एक जो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट की भी बात कर रहे हैं, और ये अमेरिकी बाजार के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कंपनियां जो है वो बहुत अलग अलग विकल्पों को ढूंढ रही हैं। और वाकई में डॉक्टर यूनिस्की जो है वो बहुत बढ़िया नवोन्मेष करते हैं। नए विचार धाराएं उनके पास हैं। और वो नए बाजार को जो है वो देख रहे हैं, नए महाद्वीप को वो देख रहे हैं। और वाकई में जो है, जो वो जिस प्रकार से वो भविष्य को देख रहे हैं, उसका उद्देश्य ही बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि क्या हम लोग एक कंपनी को खोलें। और एनाटोली
की जो सामूहिक कंपनियां हैं, वो वाकई में जो है आपके देश के अंदर उनकी एक कंपनी है जो कि कानूनी रूप से जो है वो वैध है। मैं आपको बता दूं कि जो टोकन्स हैं वो अ, जो कि एक एक्सचेंज 0 पॉइंट, एक एक्सचेंज पर उनको सूचीबद्ध किया गया है, और 0.017 के मूल्य के ऊपर उनको जो है वो को उनको जो है वो सूचीबद्ध किया गया है। तो 150 लोग थे, 130 लोग बचे हैं। तो आप बताइए कि आज की कॉन्फ्रेंस का आपका क्या फीडबैक है? क्या आपको अच्छा लगा? यदि आपको लगा कि सिर्फ हम लोग हवाई बातें कर रहे हैं या खाली बातें कर रहे हैं, तो मुझे जरूर बताइए। यदि आपको लगा कि ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहा, तो ये भी मुझे जरूर बताइए। पर मैं आपको बता दूं कि मेरा जो व्यक्तिगत मिशन जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसका एक गहरा संबंध है, गहरा एक 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 गहरा उद्देश्य है। हम लोग यहाँ पर हवाई के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम लोग एक उद्देश्य के साथ जुड़ रहे हैं। और हम लोग हमेशा आगे बढ़कर नए नए मील जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग फाइनेंशियल वित्तीय ऑडिट्स प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग नवोन्मेष कर रहे हैं, नए नए उत्पादों को लेकर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आपके सारे प्रश्नों का जो उत्तर दिया है, लेकिन हम लोग जो है पिछले 1 घंटा 50 मिनट हम लोगों ने बात की है। तो मैं माफी चाहूंगा यदि मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, लेकिन एक गुरुवार और आएगा और हम लोग वहां पर प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, और आपके उस समय जो है वो मौका होगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो मैं बहुत सारे सालों से मैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में नहीं था और मेरे लिए काफी चीजें आसान थी। तो अमान, बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरी बैठकों में भी आप हमारे साथ आएं। और मेरा विश्वास रखिए कि जब हम लोग अपने मार्केटिंग बोनस प्लान आपको प्रस्तुत करेंगे, तो वाकई में आपको बहुत आश्चर्य होने वाला है। और जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे चैनल्स के ऊपर आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपकी जो ये संध्या है वो शुभ रहेगी। और मेरे हिसाब से भारत में तो इस समय रात्रि का समय होगा। शुभ रात्रि। और कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे पार्टनर्स का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका दिन शुभ हो, क्योंकि आपका दिन बस केवल और केवल अभी शुरू हो रहा है। तो बहुत सारा प्यार आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम लोग अपने उद्देश्य में, अपने परियोजना में पूरे उतरे। तो आपको 18 जुलाई को एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।